Hi students, welcome back to our YouTube channel Risha Education, and this is Shashi Goel, and this is the third lecture of the real number and the 12th video of the ASCII MAPA real analysis series. In this video we will see the geometrical representation of real rational number, and we also study why r square is equals to why there does not exist any r such that r square is equals to 2, and then we prove this theorem, and we will also study about the rational real number, 5 properties of real number. So if you want to study this or learn this, stay tuned. So let's begin. General representation of rational number. What is the meaning of this? Geometrical representation of rational number. How can we represent a rational number geometrically? So we will understand it. Rational number can be represented by the points on a straight line. Just like a real number, we can also represent rational number on a straight line. As you already studied that this line is represent the real numbers, means this line is called the real line, in which one point is 0, which divide this real line into two equal halves, and this real line contains infinite points in it. वैसे ही सेम हम रैशनल नंबर में देखेंगे. लेकिन रैशनल नंबर के केस में क्या होगा, ये लाइन रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, बट यहाँ पे ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे. देखो हम ये समझते हैं. रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. लेट एक्स डैश एक्स बी डायरेक्टेड लाइन. ये हमने ले लिया एक्स डैश, मान लो ये ले लिया एक्स और ये एक्स डैश, तो ये एक्स डैश एक्स ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा रैशनल लाइन को. वी टेक अ पॉइंट ओ ऑन द लाइन. ओ हमने ले लिया. ओ डिवाइड्स द लाइन इनटू टू पार्ट्स. ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है लाइन को. द पार्ट ऑफ द राइट ऑफ ओ इज कॉल्ड द पॉजिटिव साइड एंड द पार्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ ओ इज कॉल्ड द नेगेटिव साइड. मीन्स this part is called the right side of O or the positive side, and this side is called negative side. Now let us take a point A on the right of A. So now we will take a point A on the right of O, represent the rational number 0, and A represent the rational number 1. Now we will say that A represent the point 1 on A and O represent the point 0. Now taking the distance OA as the unit distance or some chosen scale, each rational can be represented by a unique point on the line. अब देखो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस तरह से ले रहे हैं, ये O ले रहे हैं और ये A ले रहे हैं, तो ये वाला जो होगा ये डिस्टेंस को शो करेगा. Like taking the distance OA as the unit distance on some chosen scale, each rational number can be represented by a unique point on the line. हर एक rational number को हम एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फिर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स 2 3 ये सबको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, जस्ट ये A1 है तो ये A2 A3 ऐसे ले लेंगे. ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा तो ये वाला पॉइंट 1 को, ये 2 को, ये 3 को. इसका मतलब क्या है, ये वाला लेंथ 1 है, ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 3 है. तो इस तरह से हम लिख देंगे OA2 को 2 टाइम्स OA1, OA3 को 3 टाइम्स OA. मतलब यहाँ पे हमने A1 नहीं ले करके A लिया है इसको पॉइंट को, तो यही हो गया. हम 3 OA3 को अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स OA. And the negative integers, if we have to represent the negative integers like minus one simply represent that we have to take a integer like a dash, means like we have to take a point a dash on the left side of O, means the distance between O and a dash, which is OA dash and OA, both are equal, but the difference is A dash is in the left side of O and A is in the right side of O. So it will represent 1 and it will represent -1. So this is the basic difference. Now are they represented by the points A1 dash, A2 dash. Means if we have to represent -1, we will take A dash on the left side of O, and if we have to represent -2, we can take A2 dash on the left side of O. So OA1 dash, this is the point A1 dash. OA1 dash is equals to OA. This length and this length both are equal. OA2 dash, this is equals to 2 times of this, or you can say 2 times of this, because as we know distance must be positive. That's why
अब आगे हम क्या देखेंगे, टू रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव रैशनल नंबर आर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are the positive integer, we measure p times the distance of, like if we have to represent a point p by q on the real line, on the rational line, how can we represent it? So p by q can also be written in the form of p into 1 by q, means p times 1 by q, or we can also write it like this, p into 1 by q. So what was 1 in this case? In the real line, in the rational line, we represented o, a, a2 and dot dot dot, and similarly a1 dash, a2 dash and so on. So यहाँ पे OA क्या है हमारा, OA सिंपल, OA का लेंथ 1 है, OA टू बी द राइट ऑफ O, जो राइट साइड है, एंड गेट अ पॉइंट B. अब एक पॉइंट B ले रहे हैं, देन मेजर द क्यूथ पार्ट ऑफ द डिस्टेंस OB टू द राइट ऑफ O. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमने P टाइम्स डिस्टेंस OA का ले लिया, मान लो P कितना भी वैल्यू होगा, P अगर 5 होगा फॉर एग्जांपल, तो हम ये OA का 5 टाइम्स ले लेंगे, तो मान लो कहीं यहाँ पे आएगा. अब इसे हमें करना क्या, मान लो कि हमें वैल्यू 5/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो इस 5 को मतलब 5 into 1 यानी 5 OA का 5 टाइम्स, यानी ये पार्ट, इसको हम 3 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देंगे. मान लो ये 3 हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, तो जो 5/3 होगा वो कोई ये वाला पॉइंट होगा 5/3, यानी कि 5 पार्ट्स में 5 लेंथ ले लिया हमने, उसे उसका थर्ड पार्ट हम ले रहे हैं, तो थर्ड पार्ट यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट ये 5/3 को रिप्रेजेंट करेगा. सो ये तरीका है नोट पॉइंट को डिनोट कराने का. नाउ द क्यूथ पार्ट ऑफ द डिस्टेंस OB टू द राइट O टू द गेट द पॉइंट P रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर, सो P विल रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर P by Q. P represents the rational number R if R is the negative rational number minus S, then the point P dash to the left of O. ये सिंपली बता रहा है कि अगर कोई पॉइंट हमारा, मान लो ये O है, अगर कोई पॉइंट नेगेटिव साइड होगा, तो इसका मतलब क्या है, मान लो कि ये पॉइंट R अगर ये नेगेटिव है, माइनस S है, जहाँ पे S अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ होगा, लेफ्ट साइड. उतना ही लेंथ हम ले लेंगे नेगेटिव साइड. तो आई होप ये चीज़ आपका अच्छे से क्लियर हो रहा होगा. अब देखो नेक्स्ट, दस एवरी रैशनल नंबर कैन बी मेड टू कॉरस्पॉन्ड टू अ पॉइंट ऑन द लाइन. हम लोग हर एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन पे. इफ़ अ पॉइंट दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू अ रैशनल नंबर बी कॉल्ड अ रैशनल पॉइंट. इफ़ अ पॉइंट दैट कॉरस्पॉन्ड्स अ रैशनल नंबर टू बी कॉल्ड अ रैशनल पॉइंट. तो इस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर पे जो पॉइंट्स होगा, मतलब सॉरी ये रैशनल लाइन पे जो पॉइंट्स होगा इसको बोलेंगे रैशनल पॉइंट. देन वी ऑब्जर्व दैट between any two rational points there are infinitely many rational points, as we read earlier that between any two rational numbers there exist infinitely many rational numbers. So यही लिखा हुआ है, if all the rational numbers can be plotted as the points on the line, it appears that the whole line is covered by the rational points, that is the whole line is composed of ओनली रैशनल पॉइंट्स. तो अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें कोई भी दो रैशनल के बीच में, अगर इन्फाइनाइट रैशनल्स को अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें, तो ये कुछ देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि सारे नंबर्स कवर्ड हो गए, ये पूरा लाइन कवर्ड हो गया है. बट हमें पता है कि इसके बीच में इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, इन्फाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी. तो ये वही है. अ लिटिल फर्दर हैज़ एग्जामिनिंग विल शो सच अ व्यू पॉइंट इज़ नॉट टेनेबल. मीन्स ये बताया जा रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है. कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं हमारे पास जो कि इसमें रिप्रेजेंट नहीं होंगे, तो वो पॉइंट को हम बताते हैं जैसे कैसे पॉइंट्स होंगे जो इसमें नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं. तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि यहाँ अगर एक लेंथ, यहाँ पे एक आप स्क्वायर बना लो सिंपली फॉर एन एग्जांपल. लो ये एक एग्जांपल बना लो, ये 1 ये 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1. तो आपको ये बनाने का जरूरत भी नहीं, आप सिर्फ ये 1 और ये 1 बनाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा. अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ से मान लो ये O है, तो इस पॉइंट को यहाँ से मिला देना है. और अब आप क्या करोगे, सिंपल ये जितना लेंथ है, मतलब इसको आपको एज अ सेंटर मान के, इसको रेडियस मान के एज अ सर्कल ड्रॉ कर दो. तो देखो ये अगर ऑरिजिन होगा तो ये जितना लेंथ आ रहा है उतना ही लेंथ यहाँ पे भी होगा. लेकिन हमें पता है कि ये तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, ये 1 है ये 1 है, तो ये √2 होगा. तो इसका मतलब ये वाला जो लेंथ आएगा हमारा ये √2 आएगा. बट √2 तो रैशनल नंबर नहीं होता है. तो इसका मतलब देखो यही लिखा हुआ है, इफ़ यू टेक अ पॉइंट T टू द राइट ऑफ O, मतलब कि O के राइट में अगर हम एक पॉइंट D लेते हैं, OD इज़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड OA. तो साइड अगर OA अगर हमने 1 लेंथ लिया और ये D डायगोनल है, मतलब हमने जो ये ऐसे मैंने बनाया था अभी, और ये ऐसे ड्रॉ करने पे जो ये पॉइंट आ रहा था ये वाला D, तो then D is not a rational point as can stabilized by the following example. ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये रैशनल पॉइंट नहीं होगा.
क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे, ये 1 है और ये 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, ये वाला जो लेंथ आएगा, मान लो अगर ये लेंथ r है तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 2, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आएगा। तो हम शो करेंगे कि r कभी भी कोई रैशनल नंबर ये नहीं, मतलब कोई भी हमारे पास ऐसा रैशनल नंबर पॉसिबल नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे 2 आए। तो ये हम प्रूव करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले r हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम मान लेंगे कि r को हम p/q में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में, जहाँ पे q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है एंड gcd जो है, gcd में द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर p और q का 1 है, क्योंकि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं r को, रैशनल नंबर को। तो अब ऑब्वियस सा बात है कि r अगर p/q के फॉर्म में है तो इसका मतलब कि r का स्क्वायर क्या आएगा, p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, बट r स्क्वायर तो 2 दिया हुआ है, तो 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर क्यूब बाई क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि p स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर, अगर उसे सॉल्व अप कर दोगे तो। बट अब यहाँ से एक चीज़ देखो, p स्क्वायर को हम क्या लिख पा रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर। इसका मतलब p स्क्वायर क्या होगा, इवन। तो इसका मतलब p भी क्या होगा, इवन, क्योंकि अगर p इवन नहीं होगा तो आपका कभी भी p स्क्वायर इवन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि p इवन नहीं होगा तो क्या होगा, दो ही पॉसिबिलिटी, या तो इवन या ऑड। तो p अगर इवन नहीं होगा, p अगर ऑड होगा, तो अब जैसे ही, क्योंकि p तो एक इंटीजर है, तो इंटीजर के पास दो ही पॉसिबिलिटी, या तो इवन इंटीजर या ऑड इंटीजर। तो अगर p इवन इंटीजर नहीं हुआ तो ऑड इंटीजर होगा, एंड इफ़ यू टेक द स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर तो ये भी ऑड ही होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब p को भी इवन होना पड़ेगा। और अगर p इवन है, इसका मतलब कि p को हम सम 2 टाइम्स k के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगेन आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, p स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर। जैसे ही आप p का वैल्यू 2k पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। तब यहाँ से एक 2 काट सकते हो, तो देखो q भी इवन आ गया, q को क्योंकि हम लिख पा रहे हैं 2 टाइम्स सम नंबर, इसका मतलब q इवन हो गया। अगेन q इवन इसलिए होगा क्योंकि q अगर इवन नहीं हुआ तो q स्क्वायर का भी इवन नहीं होगा, तो q भी इवन और p भी इवन। और हमें पता है कोई भी इवन में तो 2 का तो फैक्टर होता ही है, तो GCD ऑफ p और q क्या आ गया, 2। बट ये तो रेस्ट्रिक्शन, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारा, क्योंकि हमने लेके ही चला था कि GCD p और q का 1 आना चाहिए। इसका मतलब कोई भी हमारे पास ऐसे इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। इसका मतलब कि ये जो नंबर होगा हमारा कभी भी रैशनल नंबर नहीं होगा। सो इट वाज द प्रूफ। आई होप कि ये चीज़ आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ आप पढ़ सकते हो, यही चीज़ लिखा हुआ है इसमें भी। द पॉइंट डी देयरफॉर कॉरस्पॉन्ड टू अ न्यू टाइप ऑफ नंबर कॉल्ड द इरैशनल नंबर। इस टाइप के नंबर को हम लोग इरैशनल नंबर बोलते हैं। द नेक्स्ट थ्योरम शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी रैशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट थ्योरम हम देखेंगे बहुत सारे इरैशनल नंबर का एग्जिस्टेंस के बारे में, कि बहुत तरह के एग्जिस्टेंस मतलब इरैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इनफाइनाइट इरैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो इससे हम देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, लेट m बी ए नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर। लेट m बी ए नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या है कि m कोई भी स्क्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मतलब कि m कोई भी 4, 9, 1, 16 इस टाइप का नंबर नहीं है, क्योंकि ये सारे नंबर क्या है, स्क्वायर्ड पॉजिटिव नंबर। देखो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो m को हम किसी के भी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर r सच दैट r स्क्वायर इक्वल्स टू m। तो अगर हम वैसा नहीं लिख पाएंगे उसे, तो कोई भी r ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिससे कि हम लोग उसके स्क्वायर को m लिख पाए। मतलब कि हम m को किसी भी रैशनल नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। तो ये हम प्रूव करते हैं कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आपको मज़ा आएगा। देखो, सिंस m इज़ अ नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर, तो देयर एग्जिस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स लैम्डा स्क्वायर एंड लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर सच दैट m इज लाई बिटवीन दिस। अब देखो ये कैसे है, इसका मतलब मान लो कि 5 अगर हम एक नंबर लेते हैं तो ये कोई भी स्क्वायर्ड नंबर नहीं है, स्क्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो देखो ये किसके बीच लाई करेगा, 4 के बीच और 9 के बीच। क्यों, क्योंकि देखो ये 2 का स्क्वायर, ये 4 मैंने क्यों लिया स्पेशली, क्योंकि 2 का स्क्वायर है। 9 क्यों लिया, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है। तो 2 स्क्वायर्ड नंबर के बीच में लाई कर रहा है 5, तो इसीलिए वैसे ही हमने ले लिया कि अगर कोई भी रैंडम नंबर m होगा जो स्क्वायर्ड नहीं होगा तो वो किसी न किसी 2 स्क्वायर्ड नंबर के बीच में लाई करेगा, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमने ले लिया। इफ़ पॉसिबल लेट r इज इक्वल्स टू p/q। अगर ये पॉसिबल है तो हम ले लेते हैं r का वैल्यू p/q, वेयर p एंड q, क्योंकि देखो r का यहाँ पे क्या है, r ये, क्योंकि r स्क्वायर अगर हमने m लिया तो m की जगह पे r स्क्वायर है, तो r को हम p/q मान लेते हैं। हमें प्रूफ करना है कि कोई भी ऐसा r कोई भी रैशनल नंबर नहीं होगा, बट हम कॉन्ट्राडिक्टली मान लेते हैं कि r कोई भी रैशनल नंबर है, यानी p/q के फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो अगर r p/q के फॉर्म में अगर हम लिख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m की जगह पे p/q का स्क्वायर, क्योंकि m बराबर r स्क्वायर है, तो ये हो गया। अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे
तो क्या हो जाएगा, क्योंकि सारा हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो लैम्डा इज़ लेस देन पी बाई क्यू इज़ लेस देन लैम्डा प्लस 1, तो ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों तरफ, क्योंकि हमारा सारा नंबर पी और क्यू दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो हम क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने पढ़ा था ऑलरेडी। ऑर्डर प्रॉपर्टी 4, क्यू रैशनल नंबर ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो फोर्थ प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इनइक्वालिटी पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो क्यू से आप जैसे ही मल्टीप्लाई करो तो ये लैम्डा क्यू, ये आएगा पी और ये आएगा लैम्डा क्यू प्लस क्यू। तो अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे हम डिफरेंस लेंगे, अगर तीनों से डिफरेंस कर देंगे लैम्डा क्यू तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट वाले से माइनस होगा लैम्डा क्यू तो 0, यहाँ से माइनस होगा तो पी माइनस लैम्डा क्यू, यहाँ से माइनस होगा तो लैम्डा क्यू खत्म हो जाएगा तो सिर्फ क्यू बचेगा। तो ये वैल्यू आ गया हमारा। अब इसके बाद देखो जैसे ही हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे या अगर हम वैल्यू निकालेंगे m टाइम्स p माइनस लैम्डा क्यू का होल स्क्वायर, ये वाला वैल्यू देखो आपको समझ में आएगा, ये हम क्यों निकाल रहे थे अभी। इसका जैसे आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, m को हम बाहर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर यानी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन लैम्डा स्क्वायर q स्क्वायर, ये वाला, और एक -2ab यानी -2 लैम्डा पी क्यू, -2 लैम्डा पी क्यू। अब देखो m बाहर में था तो सबसे मल्टीप्लाई हो गया m, तो अब क्या होगा ये वैल्यू, ये हमने पहले लिख दिया, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक कंडीशन गिवन है कि ये वाला हमने ऑलरेडी लेके चला था कि m इज़ इक्वल्स टू क्या है, m इक्वल्स टू ये हमारे पास गिवन था m इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और आर हमने क्या लिया था पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, मतलब आर लिया था हमने पी बाई क्यू, तो ये आ जाएगा, इसका मतलब पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा एम क्यू स्क्वायर। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे सिंपली, तो आर की जगह पे जैसी यानी पी की जगह पी स्क्वायर की जगह पे जैसे हम एम क्यू स्क्वायर पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, ये होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। देखो ये एम क्यू माइनस लैम्डा पी का होल स्क्वायर, ये देखो सेट है ऑलरेडी, तो इसका मतलब एम हमारा क्या आ जाएगा, एम क्यू माइनस लैम्डा पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी माइनस लैम्डा क्यू, तो ये पूरा काम होल स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, एम इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर, और एम क्या आ गया है, इसका भी होल स्क्वायर आ गया है। इसका मतलब क्या होगा कि p बाई क्यू, सिंस p बाई क्यू आर प्राइम टू ईच अदर, प्राइम मतलब कि दोनों का GCD 1 है, एंड p बाई क्यू का होल स्क्वायर एंड दिस आर टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ m के दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। वी मस्ट हैव p माइनस लैम्डा क्यू इज़ ग्रेटर देन q। अब देखो ये हम क्यों ले रहे हैं कि p माइनस लैम्डा क्यू इज़ ग्रेटर देन ये वाला, ये p माइनस लैम्डा क्यू जो है वो ग्रेटर देन q क्यों होगा, तो ये आप देख सकते हो, 1 मिनट। तो देखो ये वाला वैल्यू क्यों हम ले रहे हैं, इसको हम बड़ा क्यों ले रहे हैं, p माइनस लैम्डा क्यू इज़ ग्रेटर देन q, तो ये आप अच्छे से समझो तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि हमने अभी क्या देखा कि m को हमने दो तरीके से रिप्रेजेंट किया, एक तो p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर के फॉर्म में, और एक रिप्रेजेंट किया एम क्यू माइनस लैम्डा पी डिवाइडेड बाई पी माइनस लैम्डा क्यू, ये वाले फॉर्म में, p माइनस लैम्डा क्यू का होल स्क्वायर, ये इस फॉर्म में। तो हमने दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो अब मान लो कि एक नंबर हम लेते हैं 5/6। अब किसी भी रैशनल नंबर को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, इसका मतलब क्या है कि इसे हम 5/6 भी लिख सकते हैं और 10/12 भी लिख सकते हैं। अगर आप काटोगे तो सेम नंबर आएगा 5/6, यानी कि हम अगर ये हमारा 5/6 है जो कि जिसकी दोनों के GCD 1 है, तो इसका मतलब इससे सिंपलेस्ट नंबर नहीं हो सकता है। अब अगर हम कोई दूसरा कोई भी नंबर लिखें, अगर इस रैशनल नंबर को अगर हम किसी दूसरे नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो हमेशा ये जो दूसरा वाला नीचे जो डिनोमिनेटर आएगा वो हमेशा इसके डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, इसका जो ऊपर का न्यूमरेटर आएगा इसके ऊपर के न्यूमरेटर से बड़ा होगा। तो ऑब्वियस सा बात है कि ये वाला जो वैल्यू होगा यानी इसका ये वाला, ये बड़ा ही होगा इसके नीचे वाले से, क्योंकि अगर ये भी छोटा हो जाएगा तो आप समझ रहे हो कि आप क्योंकि अगर मान लो वैल्यू ऊपर में बड़ा है, मान लो कि अगर ये 1/3 है और मैं इसे लिखता हूँ 3/9, तो मैं इसे काट करके छोटा कर सकता है। लेकिन ऑलरेडी अगर ये छोटा है इससे, इस वाले से भी अगर छोटा है, तो कभी भी ये और दोनों इक्वल फॉर्म में नहीं आएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे ये चीज़, क्योंकि हमें रैशनल नंबर्स क्योंकि हमें ऊपर नीचे इंटीजर्स लेने हैं, तो कभी कट करके छोटा नहीं होगा वैल्यू। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे इस फैक्ट को, क्योंकि देखो हमने क्या लिया था कि p माइनस लैम्डा क्यू हमेशा q से छोटा होना चाहिए, लेकिन हमारा आ क्या गया, p माइनस लैम्डा क्यू बड़ा आ गया q से, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया 1 का। इसका मतलब जो हमने एजम्पशन किया था कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब r को हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, वो गलत था। इसका मतलब कि ये जो होगा इस तरह का जितना भी नंबर्स होगा वो सारा इरैशनल नंबर होगा, मतलब रैशनल नहीं होगा, तो उसे हम इरैशनल लिखेंगे। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हमने इसमें क्या किया और हमें क्या दिखाना था। ओवरऑल हमें बताना था कि
कोई भी नंबर जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का नंबर नहीं हो, तो उसके अंदर अगर वो ऐसा कोई नंबर नहीं हो m, तो वो उस नंबर के लिए हमें कोई भी रैशनल नंबर नहीं मिलेगा जिसके स्क्वायर में हम उसे रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो इसके लिए हमने तरीका क्या निकाला था, क्योंकि m कोई भी पॉजिटिव स्क्वायर नंबर नहीं था तो वो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा प्लस 1 स्क्वायर के बीच में होगा। अगर बीच में होगा तो स्क्वायर रूट हमने लिया, ये वैल्यू आया, फिर से हमने सॉल्व किया तो ये एक पहला कंडीशन हमारा आया। हमने इसे कॉन्ट्राडिक्शन के लिए दिखाना था, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जस्ट m टाइम्स लेकर के इसका स्क्वायर कर दिया ताकि हमारे पास m का एक और वैल्यू आ जाए। इसे हमने सॉल्व किया तो m का हमारे पास और एक वैल्यू आ गया। बस हमने दोनों को कंपेयर किया और बताया कि ये नीचे वाला वैल्यू जो है वो तो और ज़्यादा होगा p/q से, जो मैंने आपको तरीका अभी बताया उसके कारण। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसका मतलब कि ऐसा कोई भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम देखते हैं रियल नंबर। इसमें हम देखेंगे 5 प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की। तो द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रैशनल एज वेल एज द इरैशनल नंबर इज कॉल्ड द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज डिनोटेड बाय r। तो अगेन देखो, अब रियल नंबर इसका मतलब क्या होगा, ये रैशनल नंबर q और इरैशनल नंबर को आप q कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, मतलब q को छोड़ के, या फिर q टिल्ट से भी इसको नोट किया था इरैशनल नंबर को। और रैशनल नंबर को हम सिर्फ r से नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे तो ये स्पेसिफिकली r को शो करेगा, जो मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था। तो नेक्स्ट है हमारा, वी नाउ डिस्क्राइब सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेट r। अब सेट रियल नंबर r के क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़, ये बिल्कुल सेम है रैशनल नंबर जैसा। फिर ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, ये भी रैशनल नंबर जैसा है, ये आपको अभी इसमें बता दूंगा और फिर एक बार। फिर हम इसमें 2 एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ r और आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज़ ऑफ r। और फिर हमने जो डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ r पढ़ा था, मतलब जो q पढ़ा था, वही सेम यहाँ पे भी है। तो ये हम देखते हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। और अगर आप किसी भी बड़े कॉलेज में जाते हो या कोई भी फर्दर आगे स्टडी करते हो तो ये सब आपका बहुत बेसिक सा चीज़ है जो यूज़ होगा, इसलिए आप ये सब चीज़ को अच्छे से समझते चलो। तो देखो, ये एकदम बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्यू में लिया था अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़, वैसे ही a प्लस बी बिलोंग करेगा, मतलब क्लोज्ड होगा, एसोसिएटिव होगा, कोई जीरो एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं, यानी कॉम्यूटेटिव। फिर अगेन सेम केस मल्टीप्लिकेशन के साथ भी, a इंटू बी भी, अगर a और b कोई भी रियल नंबर होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट भी एक रियल नंबर होगा। अगर 3 रियल नंबर्स हैं हमारे पास तो हम पहले किसी 2 को प्रोडक्ट कर सकते हैं, फिर बाद में किसी 2 को प्रोडक्ट करें तो दोनों इक्वल ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर उसके बाद 1 एग्जिस्ट करेगा, एक यूनिटी एलिमेंट। फिर उसके बाद अगर कोई भी एलिमेंट a होगा तो उसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करेगा। फिर ab इक्वल्स टू ba होगा, यानी कॉम्यूटेटिव होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर और एक डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये सब सारा था हमारा अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़। अब नाउ माइनस a इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ a एंड इट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ a, एंड 1/a इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, इट इज़ कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ a। 1/a को हम रेसिप्रोकल ऑफ a बोलते हैं। और हमारा a का अगर हमारा a 0 हो तो रेसिप्रोकल उसका नहीं निकलेगा, इसका मतलब रेसिप्रोकल ऑफ a एग्जिस्ट कब, जब a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और नाउ द जीरो एलिमेंट ऑफ, ये जो हमने पढ़ा था वही सेम है, ये यूनिक होता है। r इज सेट टू फॉर्म द फील्ड अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने इसे पिछले क्लास में देखा था, वही चीज़ है ये। इससे भी हम फील्ड बोलेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना है अलजेब्रा में बहुत ही डिटेल्ड में। तो इसे मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बोथ कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ऑन द सेट r। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब देखो, ये जो होता है इसे हम लिखते हैं 5 4 + 6 फॉर एग्जांपल। तो इसे हम क्या करते हैं, 5 × 4 + 5 × 6। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवर एडिशन। तो ये बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ये मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों में ओवर एडिशन। तो इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब हम कुछ थ्योरम्स देखते हैं। तो हम ये 2 थ्योरम प्रूव करेंगे, 2.4.2 एंड 2.4.3। तो देखो आप, मज़ा आएगा। क्या है क्वेश्चन हमारा, a b c बिलोंग कर रहा है r में, देन a + b इक्वल्स टू a + c इम्प्लाइज b + c। तो देखो, ये दिखने में बहुत ईजी लग रहा है, कैंसिलेशन लॉ, कि आप a को a से काट दो तो b इक्वल्स टू c। बट इसे हमें प्रूव करना होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, सिंपली, क्योंकि हमें पता है ये हमारा दिया हुआ है a + b इक्वल्स टू a + c, और हमें पता है कि a b c सब रियल नंबर है। तो हमें पता है कि अगर a बिलोंग करेगा r में तो a का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी, -a भी बिलोंग करेगा r में। तो अगर -a बिलोंग करता है तो हम दोनों साइड -a ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हम दोनों साइड ऐड कर सकते हैं, यानी कि ऑर्डर प्रॉपर्टी जो रैशनल में लगता है वो रियल में भी लगेगा। तो हमने क्या किया, सिंपली -a दोनों साइड ऐड कर दिया। अब हमने पढ़ा है कि एसोसिएटिव होता है,
मतलब हम इन दोनों को पहले ऐड करें चाहे इन दोनों को ऐड करें, बात बराबर है। तो जैसे हम इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ए और माइनस ए 0, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को अगर हम एडिटिव इन्वर्स एलिमेंट को ऐड करें तो ये 0 देगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 0 + b 0 + b b एंड 0 + c = c। ये A4 का प्रॉपर्टी यूज़ करके यानी इन्वर्स यानी कि 0 अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड करते हैं ए में तो वो ए ही होगा, तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया यहाँ पे। सेम ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी लगता है, यानी कि ए को हम ए से काट सकते हैं तो b = c। सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे कि ए ऑलरेडी हमारा प्रोवाइडेड है, देखो कि ए 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब 1/a रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों साइड हम रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/a, फिर एसोसिएटिव लगा देंगे। 1/a हमने ले लिया, फिर एसोसिएटिव लगाएंगे तो इन दोनों को पहले ऑपरेट करेंगे, फिर a और 1/a मिलके 1 देगा, a और 1/a मिलके 1 देगा, फिर 1 × b b एंड 1 × c c। तो ये आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, ये आप खुद से भी एक बार ट्राई करना। ये सब चीज़ आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बहुत डिटेल्ड में पढ़ना है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर a बिलोंग करेगा R में देन a × 0 = 0 एंड -1 × a = -a, -a × -a = a एंड 1/1/a = a। तो ये सब चीज़ हम प्रूव करते हैं जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपको अगर प्रूव करना है कि a.0 = 0, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 0 को लिख सकते हैं 0 + 0 = 0। तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 होगा। अब वो क्या करेंगे, दोनों साइड हम a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो a × 0 + 0 = a × 0। तो यहाँ से क्या होगा, अब हमें पता है कि रियल नंबर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ओवर एडिशन जो हमने पढ़ा था, तो इसे लिख सकते हैं a.0 + a.0 = a.0। अब हम कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं, -a0 से ऐड कर सकते हैं दोनों साइड। तो जैसे ही हम -a0 ऐड करेंगे तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो -a0 हम दोनों साइड ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट मिलके ख़त्म हो जाएगा, -a0 और a0 0 हो जाएगा। वैसे ये -a0 0 0 हो जाएगा, तो 0 + a0 आ जाएगा, तो a.0 = 0। सो आई होप ये चीज़ भी आपका क्लियर हो गया होगा। सेम है -1 × a, तो देखो ये कैसे करेंगे, 1 + -1 क्या होगा 0, 1 + -1 दोनों साइड हम a से ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ 0 टाइम्स a हमने ऑब्वियस बात है ऊपर अभी पढ़ा था, ये 0 आता है तो हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। फिर क्या होगा, अब हम अलग अलग कर देंगे, a × 1 a आएगा और +-1 × a = 0। अब -a बिलोंग कर रहा है R में, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ -a से ऑपरेट कर सकते हैं। और फिर एसोसिएटिव लगा देंगे, -a हमने ऐड कर दिया, एसोसिएटिव लगाएंगे तो फिर इसे हम ऐड करेंगे, तो -a और a मिलके 0 हो जाएगा, तो -1 × a क्या आ जाएगा, -a। सो ये बहुत ईजी था। तो ऐसे ही मैं ये दो प्रॉपर्टीज़, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, ये आप ट्राई करना खुद से, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो ये दो प्रॉपर्टी आप देखना। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाक से। हमें प्रूफ इसमें क्या करना था, -a = a, यानी कि -a अगर आपको a प्रूफ करना है तो अल्टीमेटली आपको दिखाना पड़ेगा कि इसका एडिटिव इन्वर्स -a का एडिटिव इन्वर्स a है। तो आप ऐसे भी देख रहे हो कि a + -a = क्या आता है, 0। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि -a मीन्स -a का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, मतलब इस -a का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो ऐसे। तो इसके लिए क्या करेंगे, a को +-a = 0 लिख दिया हमने, और फिर -a बिलोंग करेगा R में, क्योंकि अगर a बिलोंग कर रहा है तो उसका एडिटिव इन्वर्स ही बिलोंग करेगा। तो -a प्लस, अब इस a को हम दो पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर हम देखो हमने किया कि अल्टीमेटली हम जानते हैं a + -a = 0। अब इस ये a तो कोई भी रैंडम एलिमेंट है R का, तो इसकी जगह पे हम -a भी ले सकते हैं। यानी अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो एक ही जगह आप सोचो b हमने ले लिया, कोई हमने -b एलिमेंट ले लिया, तो अगर -b ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, +-b = 0। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम +b से दोनों साइड ऑपरेट कर दें तो ये +b उधर चला जाएगा, इसका मतलब b = क्या हो जाएगा, -b, यानी कि इस b का इन्वर्स क्या होगा ये, या फिर आप ऐसे भी डायरेक्ट देख सकते हो, आप इस b को a से रिप्लेस कर दो क्योंकि a और b दोनों कोई रैंडम एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा। और सिमिलरली ये रेसिप्रोकल आप देख सकते हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/a बिलोंग करेगा R में, तो a × 1/a क्या होता है, 1। तो a × 1/a अगर 1 है, बिकॉज 1/a = 0, तो 1 = 0 ये नहीं ले सकते हैं, ये बताया जा रहा है 1/a को 0 के इक्वल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो गया 1/a, तो अगर आप a से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड,
कि ए नॉन ज़ीरो है तो 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, इसलिए 1/a को हम 0 नहीं लेंगे, तो वही लिखा गया है। सिंस 1/a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, सो 1/a बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो 1 ऑफ दिस नंबर ये डिफाइंड होगा। मतलब हम कभी भी अगर ऐसा नंबर लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है कि ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और अगर हम इसे ही नीचे ले रहे हैं तो ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी हमारा सेटिस्फाइड है, तो ये बिलोंग कर गया आर में। अब आप जैसे ही 1/a ऑफ 1/1/a करोगे, इसे अब हम जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा था ना a इंटू 1/a इक्वल्स टू 1 होता है, तो इस a की जगह पे मान लो अगर हमने ले लिया 1/b एक नंबर 1/1/b, तो ये भी 1 आएगा। इसका मतलब कि 1/1/b को हम क्या लिख सकते हैं, इसका 1/b का रेसिप्रोकल, 1/b का रेसिप्रोकल क्या होता है, b, तो यानी ये वाला वैल्यू किसके इक्वल होगा, b के। तो यही चीज़ में बताया गया है, आप देख सकते हो यही चीज़ लिखा गया है कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। और 1/a इंटू a क्या होता है 1/a टाइम्स दिस। आप अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा a का वैल्यू दिस, या फिर आप कैंसिलेशन लॉ भी लगा सकते हो, ये 1/a को इसे 1। तो हमने क्या देखा था कि 1 इज़ इक्वल्स टू 1/a ऑफ 1/1/a, जो मैंने 1/b लेके बताया था, और 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू 1/a। तो बस अगर आप इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a टाइम्स 1 a। अब रेसिप्रोकल अगर ये क्या है 1/a और 1/1/a, तो जैसे ही आप यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ लगाओगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/1/a। आई होप थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा मैशअप्ड हो गया था, बट ये आप देख सकते हो बहुत इजी है। सेम प्रॉपर्टी जो हमने इसमें यूज़ किया था वो इसमें यूज़ करना था, और ऐसे मैंने आपको एक्सरसाइज बोला था बट मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने देखेंगे 2.4.4 कि अगर a डॉट b 0 होगा तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद हम 2.4.5 देखेंगे, यानी a इंटू माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस a इंटू बी इक्वल्स टू माइनस ए बी। फिर हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ r के बारे में सीखेंगे। फिर हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड, और फिर उसके बाद कुछ थ्योरम्स बनाएंगे, तो कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे। सो आई होप आपको ये मज़ा आ रहा होगा सीरीज़ में, और आपका बहुत ही अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। सिर्फ आप एक दिन में सिर्फ आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम निकालो, और आपका कुछ टाइम में ही प्योर मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। बस आप ऐसे ही एक वीडियोज़ देखते रहो, और मैं कोशिश करूँगा पर डे ऐसे ही वीडियोज़ आपको बना करके मैं डालता रहूँ। अगर मैं किसी दिन मिस करता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा एटलीस्ट अल्टरनेट डेज़ में वीडियो डालता ही रहूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके पास ये वीडियो आ जाए तो आप देख पाओ वीडियो को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।